الرجيم في ليلة قاد من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجة खड़े होना ही पड़ेगा अकबर भाई, खड़े होना ही पड़ेगा। नहीं बन रहा है यार, नहीं बन रहा है। الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ بالعبید والعباد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ۔ انا انزلناه في ليلة القدر رکھ دو۔ وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ارباب اعزاز وارباب بلا قدرین گرامی قدر موالیان حیدر کرار وعاشقان جناب کرار، یہ ایسا مرحلہ ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ جہاں پر تفصیل سے گفتگو نہ کرتے ہوئے کچھ لمحے میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں پیش کر کے اپنے مساعد کی طرف ہو جانا ہے۔ اس لیے خالق کائنات مالک ارض و سما وہ پروردگار جو زمین کا فرش بچھانے والا ہے، وہ پروردگار جو آسمان کا شامیانہ لگانے والا ہے، اپنی محکم کتاب، اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آج تمام حضرات اس شب میں اور ایسی جگہ پر تشریف فرما ہے کہ جہاں پر فضیلتوں کی کمی نہیں، جہاں پر مسرتوں کی کمی نہیں۔ آپ ایسی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جسے کربلا معلیٰ کہتے ہیں۔ آپ اگر اس کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہیں تو اس اندازے سے لگا لیں کہ وہ خوش نصیب ہے کہ جسے شب قدر کربلا معلیٰ میں کرنا نصیب ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ بڑے بڑے تمنا کر رہے ہیں، بڑے بڑے خواہشیں کر رہے ہیں کہ ہم کربلا میں جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، نماز پڑھنے کا ثواب تو ہے، مگر جہاں پر اہل بیت کی محبت ہوگی وہیں پر نماز پڑھنا ثواب ہے، اور جہاں پر اہل بیت کی محبت نہیں ہے پھر نماز کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے کہ یہی وجہ ہے کہ کائنات کا رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مدینے میں تشریف فرما ہے، سارے اصحاب نبی ہیں، سارے اصحاب جمع ہیں۔ اس لیے کہ رسول کریم نے جیسے ہی نماز صبح شروع کی، بلال نے اذان شروع کی، اذان شروع ہونے کے بعد سارے اصحاب جمع ہو گئے، سارے صحابہ جمع ہو گئے، رسول نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد سارے صحابہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، آپ سلمان کا دم بھرتے ہیں، مگر سلمان روز نماز میں لیٹ آتے ہیں، روز نماز میں تاخیر کرتے ہیں۔ ایک دن رسول خدا نے سلمان سے پوچھ لیا، سلمان تم نماز میں تاخیر کیوں کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں تاخیر نہیں کرتا ہوں بلکہ تاخیر ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ تاخیر نہیں کرتا ہوں، تاخیر ہو جاتی ہے۔ سلمان وجہ کیا ہے، کیوں تاخیر ہو جاتی ہے؟ یا رسول اللہ یہ لوگ وضو کرتے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں، میں وضو کرنے کے بعد پہلے در سیدہ پر جاتا ہوں، سجدہ ریز ہوتا ہوں، اس کے بعد مسجد میں آتا ہوں۔ اس لیے کہ آپ ہی نے فرمایا ہے کہ سیدہ اگر خوش ہو گئی تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے، اور جب ہم خوش ہو جائیں گے تو اللہ تبارک اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ در سیدہ پر آ جاؤ گے تمہاری نماز بھی قبول ہوتی چلی جائے گی، تمہارے اعمال بھی قبول ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات ہے جبر محمد وعلی محمد۔ در صحرا پر آ جاؤ تمہاری نماز بھی قبولیت اشرف ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے ایک ایسا قرآن ہمارے درمیان بھیجا، اور اس قرآن سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہوئے، اس لیے کہ قرآن میں آج بھی وہی آیت ہے جو ہمیں استفادہ دے سکتی ہے، جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، مگر یہ اپنا ظرف ہے، یا اپنی زبان ہونا چاہیے کہ اس سے کتنا استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اس سے کتنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن وہی ہے جو 1400 سال رسول نے فرمایا تھا کہ اسی قرآن کے اندر شفا ہے، اسی قرآن کے اندر شفا ہے۔
इसी कुरान के जरिए पहाड़ों को चलाया जा सकता है, इसी कुरान के जरिए इंसानों को बताया जा सकता है। मगर अजीजान गिरामी, कुरान को लोगों ने समझा नहीं। अगर कुरान को समझा होता तो दर आले मोहम्मद पर आना पड़ता, और जब दर आले मोहम्मद पर आना पड़ता तो कुरान भी समझ में आता, अहले बैत भी समझ में आते। एक सलावत है जबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसलिए कि यही कुरान आज की शब बहुत बाबरकत शब है, इसलिए कि उस शब में आप हजरत तशरीफ फरमा है कि अभी आप तो रकत आमाल शब कद्र करेंगे। कौन आमाल शब कद्र? इसलिए कि आपके सरों पर कुरान होगा और जबानों पर अहले बैत का नाम होगा। तो वो कौन सी नमाज है कि जो आले मोहम्मद के नज़दीक कबूल है? अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद ने यही फरमाया कि जब तुम अहले बैत को कुरान के साथ साथ मानोगे तभी तुम्हारी नजात है। अगर तुम अहले बैत को छोड़ के कुरान को पकड़ रहे हो तब भी तुम सिरात मुस्तकीम पर नहीं हो। अगर तुम कुरान को पकड़ के अहले बैत को छोड़ रहे हो तब भी सिरात मुस्तकीम पे हो। ए खालिक कायनात, ए मालिक अर्ज़ व समा, तुमने माह मुबारक के रमजान में ये बता दिया कि देखो सर पे कुरान रखो, जबान से अहले बैत का कलमा जारी रखो, तब तुम सिरात मुस्तकीम पर गामदन रहोगे। एक सलावत है जबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसलिए कि कुरान जैसी किताब सर पर रखकर और अहले बैत का कलमा जारी करके, इसलिए कि हम आप हजरत आज अमाल करेंगे और 10 मरतबा कहेंगे बिका या अल्लाह, बिका या अल्लाह, तो मोहम्मदिन बे अलीन बे फातिमता। ये क्या है? एक कुरान सर पर है और एक नातिका कुरान के लबों पर आवाज बुलंद हो रही है, यानी नाम लिया जा रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप इस फजीलत को समझे, इस मरकजियत को समझे, इसलिए कि यही वो शब है जिसमें खालिक कायनात ने कुरान जैसी किताब को नाजिल किया और कुरान नाजिल करके बता दिया कि देखो इस कुरान के जरिए चलना तो तुम्हें अहले बैत का रास्ता नजर आता चला जाएगा, और जहाँ अहले बैत का रास्ता नजर आता चला जाएगा तो समझ लो कि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। इसलिए कि अज़ीज़ान गिरामी, एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा मरहला है, इस पर बहुत ऐसा गुफ्तगू की जा सकती है, मगर चूंकि वक्त सामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है और काफी लोगों को, हमारे बरादरान को क्लास में नहीं जाना होता है। मगर अज़ीज़ान गिरामी, एक ऐसा लम्हा है, एक ऐसी जगह है आप हज़रात, इधर गाज़ीपुर फज़ील अब्बास का रोज़ा है और उस पर मेरे सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। अभी ज़्यादा ही देर नहीं गुजरे हैं, हम और आप किसको रोए हैं? उस कायनात के अमीर को रो के आए हैं कि जिसे हम और आप कायनात का अमीर कहते हैं, गरीबों का सहारा कहते हैं, गरीबों का मुसाफिर कहते हैं। इसलिए कि अज़ीज़ान गिरामी, उस गरीब इमाम को रो के आए हैं, उस अमीर इमाम को रो के आए हैं कि जिसके जाने के बाद यतीमों ने यही सहारा, यही गिरिया किया कि बाबा तुम्हारे आका मरने के बाद मेरा सहारा चला गया, तुम्हारे मरने के बाद मेरा बेसहारा चला गया। हाज़ादारान मज़लूम में करबला वही रमज़ानुल मुबारक है कि जब शब 19 मेरा मौला मस्जिद कूफा में पहुंचा और पहुंचने के बाद अपने कातिल को बेदार किया और करने के बाद एक जुमला कहा, उठ नमाज पढ़ ले। मैं अज़ीज़ान गिरामी, नमाज की अहमियत मौला कायनात ने बता दिया, अपने दुश्मन को जगा के बता दिया कि देखो नमाज की अहमियत क्या है। अहले बैत को मानने वाला वही होगा जो नमाज से इश्क जोड़ रहेगा। हाँ दादारान मजलूम करबला, मेरे मौला ने जैसे ही अपने कातिल को जगाया और जगाने के बाद वो लम्हा भी आया, उस पूरे रक्त मसाहब नहीं पढ़ूंगा, वो लम्हा भी आया कि मेरे मौलाए कायनात के ऊपर जालिम ने ताज़िया ने मारा, उस जालिम ने तलवार मारी, जहर में बुझी हुई तलवार ऐसी थी कि मेरा मौला फिर दोबारा सजदा न कर सका। हाज़ादारान मज़लूम करबला, वो वक्त भी आया कि जब हसनैन ने जनाब अपने बाबा को घर की तरफ ले चले हैं ना, तो जैसे ही घर की तरफ चले हैं, कुछ ही देर चले थे कि मौलाए कायनात ने अपने बेटे हसन को बुलाया और बुलाने के बाद एक जुमला कहा, ए बेटा हसन, जरा इन असहाब से कह दो कि अपने अपने घरों को चले जाएं, इसलिए कि मेरी शहादत की खबर मेरी बेटी ज़ैनब ने सुन ली है और वो गिरिया कर रही होगी। मैं नहीं चाहती कि उसके रोने की आवाज़ इन महरमों की कान में आवाज़ जाए। मैं कहूँगा, या मौला, ये 47 हिजरी का रमज़ान है, कम से कम आपके रोने का इतना एहतमाम है मेरे मौला, आप
आपकी आंख बंद होने के बाद यही आपकी बेटियां ज़ैनब उम्मे कुलसूम शाम में तैयार बतैयार फिराई जाएंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सवाए गम मजलूम करबला के। आज़ादारा ने मजलूम करबला लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो वक्त भी आया और टाइम भी आया कि जब मेरे मौला ने इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाबा को लेकर नजफ़ अशरफ में दफन किया है। दफन करने के बाद जब घर वापस आ रहे थे क्या देखा, एक सहरा में एक बुजुर्ग है जो गिरिया कर रहा है। गिरिया ये कर रहा है, ए मेरे मोहसिन कहाँ चले गए, ए मेरे मददगार कहाँ चले गए, ए मेरे मोहसिन कहाँ चले गए, ए मेरे हम मदद करने वाले कहाँ चले गए। ये ज़ादारा ने मजलूम में करबला जब ये रोने की आवाज़ जनाब इमाम हसन के कानों में गूंजी ना, तो इमाम हसन उस सहरा में गए। क्या देखा, एक सिन रसीदा बुजुर्ग है जो रो रहा है, गिरिया कर रहा है, ए मेरे मोहसिन कहाँ चले गए, ए मेरे मोहसिन कहाँ चले गए। लीजिए ज़ादारा ने मजलूम में करबला इमाम हसन पहुँचे हैं, गुफ्तगू करना शुरू करते हैं और पूछते हैं कि आखिर तू कितना क्यों रो रहा है, मैं क्या करूं। 3 दिन से एक बुजुर्ग आता था, मुझे खाना भी खिलाता था, मुझे अपने हाथों से पानी भी पिलाता था, बस 3 दिन से नहीं आया है। गिराम इमाम हसन ने उससे पूछा, ये बता क्या उस बुजुर्ग ने तुझे नाम बताया? कहा नाम नहीं बताया। अरे जब भी मैं पूछना चाहता था तो वो कभी कहता था एक गरीब के पास बैठा है, एक यतीम के पास बैठा है। अज़ादारा ने मजलूम में करबला जैसे ही ये बुजुर्ग ने कहा, ऐ मौला मैं आपके अंदर से वही खुशबू महसूस कर रहा हूँ जो अपने मोहसिन के पास से खुशबू महसूस करता था। लीजिए अज़ादारा ने मजलूम में करबला इमाम हसन ने कहा वो कोई और नहीं था बल्कि हमारे बाबा अली हजरत अली मुर्तज़ा थे। लीजिए अज़ादारा ने मजलूम में करबला जैसे ही जुमला सुना, कहा अली मुर्तज़ा थे, उसने कहा मुझे कब्र पर ले चलो। लीजिए अज़ादारा ने मजलूम में करबला वो वक्त भी आया कि उसे कब्र पर पहुंचाया। उस कब्र पर जैसे ही उसने या अली कहा उसकी मौत हो गई। लीजिए अज़ादारा ने मजलूम में करबला, आप करबला में है, चूँकि रब्त यहीं से देता हूँ, करबला में है आप। अज़ादारा ने मजलूम में करबला यही जो मैं कहता हूँ कि मैं कहूँगा मौला आप कायनात के अमीर ज़रूर थे, कम से कम आपके जनाजे 2 बेटों ने दफन किया, बड़ी एहतमाम से गुस्ल कफन दिया, बड़ी एहतमाम से आपको ला जाके नजफ में दफन कर दिया। मगर कहूँगा हाय मैं आपका बेटा हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा बेगौरो कफन शहीद कर दिया जाएगा। अरे एक बेटा सैयद सज्जाद होगा, उसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, जनाब ज़ैनब से यही कहेगा ए फूफी ज़ैनब बेटा सज्जाद इतना मजबूर है कि अपने बाबा को कफन भी नहीं दे सकता, अपने बाबा को दफन भी नहीं। इलाही बहक